everybody, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. Welcome to Jyoti Learns. Welcome to yet another video of Jyoti Verma. So guys, today for this video we are going to know about how do plants gain nutrition. Plants को nutrition आखिर मिलता कैसे है? This is the very first chapter of your class 7 NCERT bio book, that is nutrition in plants. So we are going to actually access to this chapter. This is from your CBSE NCERT, this textbook that I have picked it from. And if you are in any state board also, if your school follows this textbook, then you can easily you can easily study from this video. And this is a sprint session, so that is the reason I'm going to complete this entire chapter in one go, in one shot, within 15 to 20 minutes I would take. And guys, this is not a very difficult chapter. First of all, this is a very easy chapter of bio class 7. But after this, there is also a chapter nutrition in animals that is a bit tough compared to this chapter. In that you are going to learn about human digestive system and all. So it's necessary that you pay most of your you give your attention to this chapter a lot, because this is all about plants. Now what are the learning points for this particular chapter? क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं? तो what is nutrition? What is nutrition? First of all, we'll learn this because chapter का नाम है nutrition in plants. For that we have to first of all understand nutrition होता क्या है. Because we know what are plants, and then we will learn about what is nutrition, then what are the different modes of nutrition, and then we will learn about what is photosynthesis, then importance and product of photosynthesis, site of photosynthesis, means everything about photosynthesis, saprotrophic nutrition, symbiotic relationship, then also a parasitic form of nutrition. Then there's a lot of things to learn, like nitrogen fixation, insectivorous plant. And guys, let us begin. So before beginning, let me tell you guys what are your to-dos for the day. So your to-dos are as follows. The very first thing is doubt. If you have any doubt after watching this video, so please do tell me in the doubt section provided below in the description box. I will solve your doubts instantly. So you will get your answers through email, YouTube replies, or through doubt solving videos. Suggestion: if you want any sprint session from me of your class 7, class 6 or class 8 or class 9 science NCERT, then you can tell me the suggestion form that is provided below. Test for this particular chapter, इस chapter का test, उसमें आप जैसे test attempt करोगे, you will instantly get your marks. So please do play that test as a quiz, okay? So if you attempt that test, then you will understand that how much have you performed in this chapter, and how much have you come to know while watching this video. Fine. So once you watch the entire video, then do attempt the test, and then the session PDF in the form of notes. So the notes for this particular chapter, the form of session PDFs, is provided in the description box. So the link is being provided in the description. So you have to go nowhere for your notes, for your assignments, for your doubt solving suggestion form, anything. All you will get is here. Now what is nutrition? Of course, this was the very first topic. So nutrition is the process of taking a food by an organism. जब एक organism food लेता है, when I have my food, then with my food I am having some nutrition, that is a component of food. ठीक है? And its utilization by the body, and when my body utilizes it, makes correct use of it, then that is nutrition. Green plants prepare their own food, while humans and animals directly or indirectly are dependent on plants for that food, because green plants have chlorophyll and they can easily prepare their food through photosynthesis. But we humans and the other animals have to be dependent on plants for that food, because we don't have any chlorophyll, okay? So we don't have any chlorophyll and we cannot prepare our own food. Our mother of course prepares food, but the vegetables that she prepares is of course brought to us by plants, because they give us that. So humans are directly or indirectly dependent on plants for that food. Directly means directly we have vegetables, so that is directly, and indirectly means that when we eat animals, so when we are eating animals like chicken, we are having the prawns, the goats, goat meat that you have. So that for that you are indirectly dependent on plants. Why? Because when you are having any non-veg food, then that is of course because of the plants. Why was it even grown? मतलब वो बढ़ा कैसे? Because it took help of plants. वो भी तो dependent था plants में. तो directly या फिर indirectly आप लोग, we all humans and animals are dependent on plants for our nutrition. Now the very next slide is now modes of nutrition. What are the different modes of nutrition?
सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑटोट्रॉफ्स. अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑफ कोर्स यू मस्ट बी थिंकिंग. सो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स फ्रॉम द नेम व्हाट द नेम सजेस्ट्स. हियर आई विल चेक. सो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? सो ऑटो मतलब क्या? खुद से. ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली समथिंग हैपेंस, मतलब खुद से वी कैन से. ओके, बाय आवरसेल्व्स, बाय आवरसेल्व्स. एंड ट्रॉफ्स मतलब क्या? ट्रॉफ्स मतलब क्या? दिस इज ऑल्सो इन an NCERT textbook, so you can refer. So auto मतलब by yourself, by our yourself. So कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म होती है जो खुद से खाना बना सकती है? ट्रॉफ्स मीन्स फूड, फाइन. तो which organism can make food by itself? Of course plants, yeah, they possess photosynthesis. Now the second mode is heterotrophs. Heterotrophs, is this name confusing, but we will make this name also easier. Then the saprotrophs, this also seems confusing, right? But okay, we are going to make this clear as well. The parasitic and then insectivorous. Basically there are this type of these three modes of nutrition. So the saprotroph, then the parasitic are also basically saprotrophs, and the insectivorous, they insectivorous plants possess photosynthesis as well. ठीक है? So but they have the lack of nitrogen, so they need to have insects as well. Now what are autotrophs? Autotrophs क्या होते हैं? So before let us understand autotroph. Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms make their own food by simple substances. ये एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का in which organisms they who make their own food, वो खुद का ही खाना बनाते हैं. But how do they make it? From simple substances. कौन कौन से simple substances? Like CO2, that is carbon dioxide, and H2O, that is water. They use with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight, and with the help of chlorophyll, they by the process of photosynthesis they make their own food. So therefore plants are called autotrophs. अब ये कौन कर सकते हैं? Of course this is the thing that plants can do. So that is why plants are called autotrophs, as you can see in the picture as well. So basically plant are autotrophic organisms because they can prepare that food by themselves. Now what are heterotrophs? What is this word? So heterotrophs are basically, let us understand them. So there are many organisms who are directly or indirectly dependent on plants for their food. So humans and animals do not contain chlorophyll and are dependent on plants for their food in ready-made form. हम लोग होता है कि let us get ready-made food because we do not actually know how to prepare food by ourselves. हम लोग को खाना हम लोगों को कच्चे से पका हुआ खाना बनाने तो आता है, but we actually do not know how to bring that food for which we are cooking. Fine. So those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants are animals called heterotrophs. हेट्रोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो खुद से खाना नहीं बना सकते एंड प्लांट्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और इस तरह के न्यूट्रिशन के मोड को क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर विद दिस गाइस? Now what is the very next thing is photosynthesis. We are going to learn about photosynthesis. The photosynthesis is the food making process in plants because plants prepare their foods through this particular process. Now here comes the slide. The process by which autotrophic green plants make their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment called chlorophyll is known as photosynthesis. मतलब ये आपका this is 100% guaranteed might appear in your examination. What is photosynthesis? Define photosynthesis. So this is it. The process by which autotrophic green plants prepare their food. Autotrophic means the plants which can prepare their foods by themselves. In fact, all the plants are not autotrophic. ठीक है? All the plants are not autotrophic. Many plants are in such a way that they aren't autotrophic. Fine. So they are not completely autotrophic or not autotrophic at all. Some plants at this rate as well. Fine. So they use the simple inorganic substances and they make their own food using sunlight and chlorophyll, and that is known as photosynthesis. Chlorophyll, what happens is chlorophyll basically captures the sunlight. Chlorophyll जो sunlight होती है उसको capture करता है. Then
then then happens the process of photosynthesis through the usage of carbon dioxide and water. Now we are going to learn about what is the site of photosynthesis. मतलब photosynthesis आखिरकार होता कहाँ पे है, where does it actually happen? So what is the site of photosynthesis? Okay, well, so the site of photosynthesis is as follows. So यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो when I ask this question what is the site of photosynthesis, the answer to me is the site of photosynthesis is leaves. Leaves में जो chlorophyll होती है present that helps plants to prepare their food. अब थोड़ी बहुत तो stem में भी होती है, but if stem would be the site of photosynthesis तो वो पूरे plant तक उसकी requirement नहीं पहुँच पाएगी, complete नहीं हो पाएगी. Now here are the guard cells guys, here are the guard cells, this and here is the stomata. यहाँ पे stomata है, ये वाले guard cells आ गए. एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपके बेसिकली क्लोरोफिल के पिगमेंट्स. ये है आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स. ये लीफ है, लीफ के अंदर होता है यहाँ पे स्टोमेटा ओपनिंग यहाँ पे. एंड ये आपका स्टोमेटा का पिक्चर दिखाया है जहाँ पे यहाँ पे स्टोमेटा ओपनिंग है, यहाँ पे गार्ड सेल्स है आपके. ठीक है. सो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, तो इस यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो आई विल शो इट टू यू बाय द जूम मेथड एज वेल. यहाँ पे आपका देखो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, ये वाले आपके स्टोमेटा के हैं, एंड यहाँ पे आपके गार्ड सेल्स आ गए. एंड फिर यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये आपका स्टोमेटा ओपनिंग का है. फाइन, क्लियर विद दिस. Now let us move on and then let us learn about what is the importance of photosynthesis. अब photosynthesis ज़रूरी ही क्यों है, क्यों ज़रूरत है photosynthesis? Because अगर plants photosynthesis नहीं करेंगे तो हम लोग को भी we can say that we will also not get food. Because अगर हम लोग humans को food नहीं मिलेगा, हम humans को food नहीं मिलेगा, so how we will survive? So अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि हम लोग humans को भी नहीं food मिलेगा? If the plants do not perform photosynthesis, there would be no food on earth. अब पूरी अर्थ पे फूड होगा ही नहीं, बिकॉज ऑल द फूड दैट कम्स ऑन अर्थ इज बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो एनिमल्स हम लोग जो एनिमल्स हम लोग खाते हैं लाइक चिकन, द प्रॉन्स एंड द गोट मीट, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो भी ग्रो होते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्कुल भी प्लांट प्रोडक्ट हो ही ना हमारे अर्थ पे, बिल्कुल भी खाना ना हो हमारे अर्थ पे, तो वो लोग भी तो दे विल गेट नथिंग टू ईट एंड वो भी मरते, मतलब जन्म लेते ही मर जाएंगे वी कैन से, है ना, बिकॉज दे विल गेट नथिंग टू ईट एंड दे विल सिंपली डाई. सो दैट इज़ द रीज़न. एंड हम एनिमल्स को ना ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है फॉर आवर ब्रीथिंग. हम लोग को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन नाम का एक we can say गैस चाहिए होता है, एंड ऑक्सीजन इज बेसिकली आवर नीड्स. सो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हाउ वी विल गेट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का ही प्रोडक्ट होता है जो लास्ट में उनको एंड प्रोडक्ट मिलता है. So this is why photosynthesis is important. Therefore it can be said that there is no life possible without photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, वी कैन से दैट. नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस? सो हियर कम्स द पिक्चर, सो आई विल शो इट टू यू गाइस. सो केमिकल, ये वाला 100% गारंटीड माइट अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होता है वो. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर, सो गाइस डू वॉच इट, बिकॉज उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है दैट फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ केमिकल चेंज. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका साइंस में चैप्टर 6 है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. सो पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, प्लस देन आता है आपका वाटर यूजेज होता है, और तब जाके आपका क्या बन करके आता है, शुगर. ये जो शुगर है ना आपका, ये प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का. वी आर ऑल्सो फर्दर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज. देन ये आपका ऑक्सीजन भी फॉर्म होता है, मतलब इन दोनों की मदद से आपका फॉर्म होगा शुगर एंड ऑक्सीजन. और ध्यान रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल as well as sunlight, as well as you need sunlight for this particular process. Fine. Now let us learn about what are the products of photosynthesis. The food produced by the process of photosynthesis is mainly carbohydrates. जो भी food produce होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. It produces glucose as food material which later gets converted into starch. और फिर glucose, I have already spoken about these 3 words, right? And then what are this? I am speaking it now. So glucose,
इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज फूड मटेरियल, ग्लूकोज को वो फूड मटेरियल के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है और फिर वो बाद में स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो स्टोर भी होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर लीव्स में स्टार्च है, अगर लीव्स में स्टार्च है तो वो बताता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस लीव्स में होते हैं। सो स्टार्च को कैसे हम लोग पहचाने कि वेदर लीव्स में स्टार्च है या नहीं, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बट आई एम गोइंग टू मेक इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, द प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन माई नेक्स्ट वीडियो। कूल। नाउ यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का है, CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर वो लेता है एंड देन वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पे सनलाइट जा रही है, तो ये वाला तो केमिकल बैलेंसिंग का है, तो आपको बैलेंसिंग पे उतना ध्यान नहीं देना, यू आर गोइंग टू फर्दर लर्न केमिकल बैलेंसिंग। वेल यहाँ पे जो प्रॉपर चीज़ें हैं, क्या रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे शो अप किए हुए हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, पर्टिकुलर पिक्चर में। नाउ गाइस व्हाट आर पैरासाइटिक प्लांट्स? अब पैरासाइटिक प्लांट्स ये क्या होते क्या है पैरासाइटिक प्लांट्स? सो व्हेनेवर a parasitic plant is one of the lines inside or outside the other organisms derive that food from them। मतलब जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स तो होते हैं बट ऑटोट्रॉफ्स बिल्कुल नहीं होते, दे आरंट ऑटोट्रॉफिक बिकॉज वो लोग अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो खुद से नहीं क्रिएट कर सकते, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज दे हैव नो क्लोरोफिल, तो इसलिए वो खाना कैसे बनाते होंगे? द प्लांट आर नॉन ग्रीन विच ऑब्टेन्स दैट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म they have no chlorophyll, they cannot prepare their own food and they take help of other organisms and they are known as parasitic plants। From those body food is obtained is called host। अब हम लोगों को खाना मिलता कैसे होगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमने बोल दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो ऐसे जाएगा के बोलेंगे नीम ट्री विल यू प्रोवाइड मी विद सम फूड, यू आर प्रोसेसिंग, you process photosynthesis, right? So will you provide me with some food? Nothing like this happens। वो ऐसा बोलता नहीं। what happens is वो प्लांट क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर प्लांट है, ये वाला एक पर्टिकुलर ट्री है हम लोगों ने मान लिया है ना। सो जब ये ट्री है तो इस ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे वो पूरे ट्री में इस तरह से अपने आप को ऐसे वेव्स बैठा लेगा, वो अपने वेव्स पूरे ट्री में ऐसे कर लेगा और प्लांट जो न्यूट्रिशन बनाएगा वो न्यूट्रिशन को वो यूज़ कर लेगा। सो वो सक कर लेता है न्यूट्रिशन, और जिस प्लांट के ऊपर या फिर जिस प्लांट के ऊपर वी कैन से वो है ना ऐसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये पैरासाइट है, तो वो क्या करेगा पूरा उसको जकड़ लेगा वी कैन से, पूरे लाइक अ क्यूकम्बर क्रीपर जैसे होता है ना उस तरह से पूरा स्पाइरल कर लेगा। और जिस प्लांट के ऊपर वो स्पाइरल करता है उस प्लांट को बोला जाता है होस्ट प्लांट। मतलब पैरासाइटिक प्लांट्स होस्ट प्लांट्स के ऊपर अपनी जगह बनाते हैं। It takes ready-made room for the host for a special type of roots called sucking roots which penetrate into host plant and suck food material from the host। अब उन लोग के पास एक रूट होता है जिसको सकिंग रूट्स बोलते हैं। आप सकिंग रूट्स उनको मदद करते हैं कि दूसरे प्लांट्स में से वो उनका न्यूट्रिशन ना अपने अंदर खींच लें एंड देन दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर देम। एंड हियर फॉर इंस्टेंस इफ यू नीड पिक्चर आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू विद इट। सो ये देखो ये है नॉर्मल प्लांट, आपका जो रेड लाइन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो आपका नॉर्मल प्लांट है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये जो ग्रो हुआ है जो ग्रीन मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा इस तरह से पूरा ये ग्रो हो रखा है, वो है आपका पैरासाइट। अगर एक और पिक्चर है आई हैव फॉर यू गाइस फॉर पैरासाइट्स, तो ये है वो पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट के ऊपर जो येलोइश प्लांट्स ग्रो हुए हैं ना दैट इज ओनली नोन एज पैरासाइट। यहाँ पे आई हैव वन मोर पिक्चर फॉर यू। यहाँ पे देखो कितना बड़ा पैरासाइट, यहाँ पे जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ग्रीन सारे आपके नॉर्मल प्लांट्स है, ग्रीन आपके जो नॉर्मल प्लांट्स है वो है, और इनको ऊपर से ढक लिया है येलो कलर के पूरे पैरासाइट्स ने, पूरा का पूरा उनको ढक लिया है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उनका वो छीन रहे हैं। सो नाउ कम्स द अनदर टॉपिक फॉर द डे दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So here comes the answer. There are some plants which trap insects and digest them for their nutrition। मतलब ऐसे भी plants होते हैं जो insects को खाते हैं। मतलब for example ये कोई insect है, फिर मैंने अपनी टंग बाहर निकाली, फिर मैंने इसको खा लिया, ऐसे भी plants होते हैं।
दैट से टंग निकाली और उनको खा लिया। सो जो प्लांट्स ऐसा किया करता उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। दिस प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड, ऑब्टेन न्यूट्रिशन बेसिकली फ्रॉम इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स के थ्रू अपना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की जो नीड है वो कंप्लीट करते हैं। बट ये प्लांट्स ना कलर में ग्रीन होते हैं। When I'm saying कलर में ग्रीन होता है, इसका ये भी मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर कर रहे हैं तो वो इंसेक्ट्स को क्यों खा रहे हो? फोटोसिंथेसिस से उनको जब खाना मिल रहा है तो व्हाई दे वांट इंसेक्ट्स आल्सो? सो द आंसर इज हियर दैट दिस प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, बट वो ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं। वो जिस सॉइल में ग्रो होते हैं आपको पता होगा, बेसिकली आई विल शो इट टू यू गाइस हियर, कि हर तरह के सॉइल में हर प्लांट नहीं ग्रो हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस सॉइल में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे या फिर इस सॉइल में ग्रो हो जाएंगे। हर एक प्लांट का एक प्रॉपर चीज़ होता है कि ये प्लांट अगर सैंडी सॉइल में ग्रो होता है तो सैंडी सॉइल में ही ग्रो होगा। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्लांट्स क्यों ग्रो होते हैं? बिकॉज एक ही प्लांट हर जगह नहीं ग्रो हो सकता है। अब इसीलिए जिस सॉइल में वो लोग को ग्रो करने की कैपेबिलिटी है, जिस सॉइल में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है। दैट सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एलिमेंट। नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स। अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा देन हाउ विल दे उनकी जो न्यूट्रिशन होती है, जैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ही पढ़ा था। वी वांट कार्बोहाइड्रेट्स, वी वांट प्रोटीन्स, वी वांट फैट्स। तो हम लोग को इन सब की ज़रूरत होती है, उसी तरह उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ये प्लांट न्यूट्रिएंट है, तो नाइट्रोजन उनको कैसे मिलेगा? तो उसकी नीड पूरी करने के लिए दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, एंड इसीलिए उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस। जैसे कोई इंसेक्ट उनके आसपास आता है तो उनको पता चल जाता है एंड दे आर लाइक झपट के वो खा जाते हैं। What are the examples? Pitcher plant, sundew और Venus flytrap। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, लाइक पिचर प्लांट। यहाँ पे आई हैव फोटोज फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे देखो, ये इसके नेल्स मतलब ये इसके टीथ है जो शार्प है। यहाँ से कोई भी इंसेक्ट जाएगी तो अपना मुंह बंद करेगा और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा। ये है पिचर प्लांट आपका। पिचर प्लांट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शेप में एक मटके जैसा, मटके को इंग्लिश में पिचर बोला जाता है। एंड ये सनड्यू या फिर वीनस फ्लाईट्रैप होगा। फाइन, now let us learn about what are saprotrophs. Saprotrophs basically, saprotrophs क्या होते क्या हैं? What are this? So name से you think that this is difficult, but this is quite easy thing. The mode of nutrition in which organisms take the nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. So ये जो डेफिनेशन है ना 100% गारंटीड माइट अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, दैट ये आपका सेप्रोट्रॉफिक प्लांट न्यूट्रिशन प्लांट्स का डेफिनेशन है। सॉरी। सो आप लोग को अगर सेशन पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, पूरा सेशन पीडीएफ होगा और आप अपनी नोटबुक में इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। सो प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। अब जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। अब सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं प्रोसेस कर पाते बिकॉज उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं कि जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मीन्स उसकी अपनी जो उनकी न्यूट्रिशन की एक नीड होती है वो डेड और डिकेइंग मैटर में से प्राप्त करते हैं, फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे किसी की डेड बॉडी रखी हुई है। हम लोग ऐसा ही करते हैं ना, यहाँ पे फिर आपने स्ट्रॉ रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर बहुत सारा ये है लीव्स जो गिर जाते हैं फॉरेस्ट में से, तो बहुत सारे लीव्स गिर गए हैं। तो इस तरह से जहाँ होगी ना तो वहाँ पे यहाँ पे एक मशरूम उग जाएगा। पता हैव यू गाइस ऑब्जर्व्ड इट? तो यहाँ पे है ना एक सेप्रोट्रॉफिक प्लांट उग जाएगा। तो दैट्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं वहाँ पे वो ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि डेड और डिकेइंग मैटर में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो खींच लेते हैं अपने अंदर एंड दे हैव इट। और इस तरह से उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ना ख़त्म होती है। सो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फंगी। कौन सी फंगी? अब प्लीज़ डू नॉट डू दिस मिस्टेक। जो फंगी है वो मशरूम इज़ अ फंगी ओनली। सो मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर दैट फूड। और ब्रेड मोल्ड्स जो होती है, एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ईस्ट भी एक सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है। ईस्ट भी एक
तरह के फंगी ही है, इट इज़ ऑल्सो फंगी। वो हमारी ब्रेड्स वगैरह खिल जाते हैं ना, उसमें हेल्प करता है। अल्कोहल फॉर्मेशन में भी ईस्ट ही मदद करता है। और ये देखो, ये एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ मशरूम बेसिकली, ठीक है, दिस इज़ अ मशरूम। तो ये वाला देखो आप लोग, ये है एक आपका मशरूम। तो इस मशरूम में कैन यू गाइस सी यहाँ पे कितना ज़्यादा डेड लीव्स है, मरे हुए लीव्स है, ड्राई लीव्स हैं, और उन सब के ऊपर ही ये ग्रो हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ड्राई लीव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के ऊपर है ना ये मशरूम ग्रो हो चुका है। तो इस तरह से ग्रो होते हैं आपके सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ना हम लोगों ने डील किया सेप्रोट्रॉफ्स। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आखिर होती क्या है। What the hell is symbiotic relationship? Let me tell you, this is nothing like hell. This is a very important thing that you must remember. तो कई बार क्या होता है कि दो प्लांट्स ना एक दूसरों को मदद करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला मेरी फ्रेंड को कि आई विल हेल्प यू आउट, कि तुम मुझे रहने के लिए घर दो। तो मैंने उसको बोला फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, आई डोंट हैव एनी होम, ठीक है, दिस इज़ मी, आई डोंट हैव एनी होम एंड दिस इज़ माई फ्रेंड एंड माई फ्रेंड हैज़ नो न्यूट्रिशन, उसके पास खाना नहीं है। सो व्हाट आई विल से, तुम मुझे रहने के लिए घर दो, मैं तुमको खाना दूंगा। सिंपल सिंपल, दोनों की मदद हो जाती है, दोनों ही नीड रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। तो इसी एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल लिचन और राइजोबियम, ठीक है। लिचन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर। लिचन में क्या हुआ करते हैं कि एल्गे और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गे तो आपको लोगों को पता ही होगा, एल्गे होते हैं वो, और फिर फंगस भी। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। अब क्या करता है, एल्गे तो ग्रीन प्लांट है, उसके पास क्लोरोफिल भी होता है, और इसीलिए एल्गे क्या कर सकता है कि अपना फूड खुद से बना सकता है। अब एल्गे फूड तो एल्गे के पास क्या हुआ, इसका मतलब एल्गे के पास है फूड। और फंगस जो है वो फूड तो बिल्कुल नहीं बना सकता, पर उसके पास रहने के लिए तो जगह है, वो अपने ऊपर तो एल्गे को ग्रो कर सकता है, तो इसीलिए इसके पास हो गया शेल्टर। अब इसको ज़रूरत है फंगस को ज़रूरत है फूड की, और एल्गे को ज़रूरत है शेल्टर की। तो वो दोनों बोलते हैं हम लोग एक साथ रहते हैं, तुम मुझको शेल्टर देना, मैं तुमको फूड दूंगा। तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फाइन, तो यहाँ पे आई हैव अ पिक्चर फॉर यू गाइस, जो कि पिक्चर है आपका लिचन एंड फंगी, ठीक है। ये आपका देखो लिचन एंड फंगी नहीं, बेसिकली दिस इज़ अ लिचन जिसको एल्गे एंड फंगी जिसके अंदर आता है। ये आपके फंगी के ऊपर जो आपका एल्गे ग्रो हो रहा है इसको बोला जाता है आपका लिचन्स। फाइन, क्लियर विद दिस। Now what is the next thing that we have to learn in this particular chapter? Now ये हमारा one of the last topic है, that is nitrogen fixation. नाइट्रोजन कैसे फिक्स किया जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये ये टॉपिक आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर का ही टॉपिक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में के अंदर का क्यों है आप सबको जानना है, तो चलो ये जानते हैं। सो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फाइन, ना इसमें क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं बैक्टीरिया को, राइजोबियम को, कि तुम मुझे रहने के लिए जगह तुम मुझे न्यूट्रिशन दो। जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को बोलते हैं कि तुम मुझको खाना दो। तो राइजोबियम बोलता है ठीक है मैं तुमको खाना दूंगा, पर तुम मुझे रहने के लिए जगह दो। तो इसीलिए क्या करता है, राइजोबियम जो है वो प्लांट के रूट्स में रहता है और फिर उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से फिक्स कर सकता है रूट्स में। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। बहुत ज़्यादा ये तीन आपको प्लांट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तीन इंपॉर्टेंट तीन इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिशन है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है एंड देन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों रहते हैं। So guys, this was it for today. I know this was a long video, but still I hope you guys had found this video helpful. And if in case you have found this video helpful, do not forget to tell me in the comment section provided below. The suggestion form is also provided below. If you have any doubts related to this chapter, do fill the doubt solving form. So subscribe to my channel Jyoti Verma. Let's meet in our next video with another interesting topic. So guys, till then take care, tata and bye bye.